Namaste to everyone. My name is Samita Banka Agrawal and I welcome you all in this lecture series on industrial management. Today, this is the sixth lecture in the series and fourth and final lecture of the second chapter, which was organizational structural dynamics. So બધાનું સ્વાગત કરું છું આ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ મેનેજમેન્ટના લેક્ચર સિરીઝમાં. આજે આપણે બીજા ચેપ્ટરનું છેલ્લું અને ચોથું પાર્ટ જોવાના છીએ અને આ જે પર્ટિક્યુલર ટોપિક છે એ છે ઓર્ગેનાઇઝેશન કંટ્રોલ ઉપર. તો સ્ટાર્ટ કરીએ પહેલા તો એક રીકેપ લઈ લઈએ ફટાફટ કે આપણે અત્યાર સુધી શું શું જોયું છે. ઓકે, તો સૌથી પહેલી વસ્તુ જે આ ચેપ્ટરમાં આપણે જોયેલી છે દેટ इज व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन. ओके, ऑर्गेनाइजेशन या संस्था क्या होती है उसके बारे में हमने देखा, उसकी परिभाषा सीखी, उसकी लाक्षणिकताओं को देखा. ओके, એના જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એને આપણે જોયું. એના પછી આપણે જોયું કે કઈ રીતે ઓર્ગેનાઇઝેશનનું સ્ટ્રક્ચર થાય છે કે ભાઈ ટોપ લેવલ શું હોય છે, મિડલ લેવલ શું હોય છે, બોટમ લેવલ શું હોય છે, રાઈટ. Then we saw about the various structures, type of structures. Okay, whether it is line, whether it is functional, whether it is line and staff, committee, or matrix. After that, we came across certain organizational principles, okay, which included division of labor, scalar chain, functional process, delegation of authority, centralization, and decentralization. હવે આ ચેપ્ટરમાં, okay, this chapter is purely based on, if I call it, if more pronouncedly if I tell it, it's called affective domain. Okay, affective domain is in terms of કે એમાં જે વ્યક્તિ વિશેષ છે, ઓકે, જે આઈડેન્ટિફિકેશન છે, કેરેક્ટરાઇઝેશન છે ને એના ઉપર છે. તો અહીંયા કલ્ચરની વાત થાય છે મેઇન મુદ્દા ઉપર. તો પહેલા તો આપણે કલ્ચરને એક સિમ્પલ ભાષામાં કહીએ તો શું હોય. ઓકે, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर? सो कल्चर और कुछ नहीं है, कल्चर प्रथा है, राइट. कहीं का एक रिचुअल है, कुछ बिलीफ्स है, ओके, वो सब मिला के कल्चर होता है. और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो मेरा मानना है कि कल्चर इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल, of society, of a group of people, and in this case of an organization. કે કલ્ચર થી ઓળખાણ થાય છે. ઓકે, ઉદાહરણ આપું, બહુ સહેલું ઉદાહરણ છે આપણે જોયા જઈએ તો. હું તમને કહું, હું એક એવી વ્યક્તિની વાત કરું છું, તમારે વ્યક્તિ ક્યાંનું હોઈ શકે એ ઓળખાવાનું છે. ઓકે, who am I types. So if I say that person, he eats fafda and jalebi, he dances garba, okay, and he speaks in Gujarati. Few traits, these are all cultural traits. Okay, so you will be easily able to identify, okay, that I am talking about a person who belongs from Gujarat. Okay, આ ત્રણ નાના નાના હું લાક્ષણિકતાઓ બતાડું જે બધા કલ્ચરના પાર્ટ છે, રાઈટ. એક કલ્ચરના પાર્ટ બતાડું એટલે આપણને એ તો નક્કી થઈ જાય છે કે ભાઈ હું એક ગુજરાતી માણસ વિશે વાત કરું છું. એવી રીતે ઓર્ગેનાઇઝેશનનું પણ કલ્ચર હોય છે અને એ ઓર્ગેનાઇઝેશનની ઓળખાણ હોય છે. આપણે આમ ભાષામાં પણ વાત કરતા હોઈએ ઘણીક વાર, તો આપણે કહેતા હોઈએ ને કે ભાઈ આ કંપની સારી છે. કેમ સારી છે? કેમ કે એનું ત્યાંનું કલ્ચર સારું છે. ઓકે, આપણે કહીએ ત્યાંનું મેનેજમેન્ટ બોગસ છે. Okay, when I say this, I'm clearly and directly indicating towards the culture of that organization. I think this is very simple, बधाने खबर पड़े छे. Okay, एक बार हिंदी में मैं फटाफट समझा देती हूँ कि हम यहाँ कल्चर की बात कर रहे हैं, संस्थान के कल्चर की, किसी भी संस्था के कल्चर की. ओके, तो कल्चर का मेरा अपना मानना है कि कल्चर जो है वो एक आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है किसी की. ओके, अगर मैं ये कहती हूँ कि वो भांगड़ा करता है, वो शायद मक्के की रोटी खाता है, ठीक है, तो हमें क्लियरली एक दिमाग में एक इमेज आती है कि आई माइट बी टॉकिंग अबाउट समवन हु बिलोंग्स टू पंजाब. एक मन में धारणा आ जाती है कि मैं किसी पंजाबी इंसान के बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है, तो इस तरह से कल्चर एक ओळख, एक आइडेंटिफिकेशन, एक पहचान बताता है. उसी तरह से किसी भी संस्थान का कल्चर उसका पहचान बताता है. कई बार हम आम भाषा में बात करते हैं ना कि वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, वो कंपनी अच्छी है. वो जो अच्छी वाली बात है ना, वो इस कल्चर से ही आइडेंटिफाई या डिटरमाइन होती है. उसके बाद हम आगे मोरल की भी बात करेंगे, बट पहले यहाँ से शुरू करें. सबसे पहले
ओके, तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहला परिभाषा या डेफिनेशन है रिकी ग्राफिन की। ओके, વ્યાખ્યા જોઈ લઈએ છે। તો પહેલી વ્યાખ્યા છે રિકી ગ્રાફિનની। what does he says? Organization culture is collection of shared beliefs, values, rituals, stories, myths, and specialized language that foster a feeling of community among organization members। तो बहुत सीधे सीधे भाषा में बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है कलेक्शन है। ओके, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं इसमें। ओके, बिलीफ्स की, विश्वास की, वैल्यूज की, ओके, जो हम रीति रिवाज निभा रहे हैं उनकी, कुछ कथाओं की, कुछ मिथ्स की, स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज, ओके, दैट फॉस्टर अ फीलिंग ऑफ कम्युनिटी, जो एक कम्युनिटी में होने का एहसास दिलाती है। ओके, तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ओके, ગુજરાતી માં આપણે વાત કરીએ તો ઓર્ગેનાઇઝેશન કલ્ચર માં ત્યાંના લોકો છે ને એક કોમન વિશ્વાસ, એક કોમન પ્રથા, એક એક કોમન ચાલચલન એ લોકોનું હોય છે। ઓકે, તમને હજી એક ઉદાહરણ આપું તો લેટ અસ સપોઝ ઇન્ડિયામાં અત્યારે કોઈ પણ કંપની હોય, ઠીક છે, તો ઇન્ડિયામાં આપણને ખબર છે કે ભાઈ આપણે दिवाली इज अ मेजर फेस्टिवल, ठीक है। तो देखना कि सारी कंपनीज में दिवाली को लेके कुछ स्पेशल इंक्लिनेशन होता है, ठीक है। कंपनीज कुछ दिवाली पे बोनसेस देती है, कुछ जगह दिवाली पे कुछ इवेंट्स रखे जाते हैं, ओके, कुछ जगह गेट टुगेदर्स रखे जाते हैं, ओके। पर और उसकी वजह से लोगों, जो वहां के लोग हैं वहां को, उनको भी एक गुड फीलिंग आती है, एक मोटिवेशन मिलता है, राइट। अब यही चीज अगर यूएस में देखा जाए तो वहां पे यही चीज क्रिसमस पे किया जाता है, क्योंकि क्रिसमस वहां का मेजर फेस्टिवल है। तो इस तरह से जो कॉमन बिलीव्स पे जो है ऑर्गेनाइजेशन चलती है, जिससे कि वहाँ के लोगों में एक कम्युनिटी में होने की एक एकाग्रता की, इंटेग्रिटी की फीलिंग आती है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है। एक और डेफिनेशन मैं यहाँ ले लेती हूँ रॉबर्ट एंटनी और विजय गोविंद राजन की। व्हाट डज दे से इज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन इंटरनल कल्चर, कॉमन बिलीफ, शेयर्ड वैल्यू एंड नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स एंड assumptions that are implicitly accepted and explicitly manifested throughout the organization। implicitly accepted का मतलब है कि लोग अपने आप उसको एक्वायर कर लेते हैं, उसको अपना लेते हैं। और एक्सप्लिसिटली मैनिफेस्टेड का मतलब है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही क्या कहेंगे, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी नो ऑथोरिटी के, लेकिन बहुत ही शांति से, बहुत ही हारमोनियस वे में सभी को थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन उसको अप्लाई करती है, उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करती है। ये जितने भी डेफिनेशन उसमें देखोगे कि सेट ऑफ, कॉमन, म्यूचुअल, इस तरह से शेयर्ड, पर वो सारे फिक्स ही है, बिलीव्स, वैल्यूज, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बहुत ही एक पर्टिकुलर पिक्यूलियर चीज है और जरूरत वाली चीज है। ओके, चलिए आगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, तो यहाँ पे कल्चर इज सीन एज अ परपेचुअल कॉन्सेप्ट विच इज टैंजिबल एंड दिस कैन नॉट बी टच्ड और सीन। इट कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय इट्स एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला है कि कल्चर इज सीन एज परपेचुअल कॉन्सेप्ट। परपेचुअल मतलब इट्स अ सोच, मानसिकता है, ठीक है। अब सोच है या मानसिकता है तो वो एक इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल का मतलब है जिसे ना टच किया जा सकता है, ना ही देखा जा सकता है। सो दस कैन नॉट बी टच्ड और सीन, पर उसे समझा जा सकता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से, उसके एट्रीब्यूट से, उसकी लाक्षणिकताओं से, आप जो भी उसको कहना चाहे, ठीक है, उसके लक्षणों से। ओके, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एज एवरी इंडिविजुअल हैज यूनिक पर्सनालिटी, सो आल्सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ स्पेसिफिक एंड यूनिक पर्सनालिटी विच इज नोन एज कल्चर। ये हमने स्टार्टिंग में ही मैंने बात की कि जिस तरह से हर इंसान की, हर एक इंडिविजुअलिटी की एक अपनी पर्सनालिटी होती है जो उसके कल्चर से उसको मिलती है, उसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन की एक अपनी अलग पहचान होती है जो उसका कल्चर कहलाती है। The internal constraints comes from the organizational culture। अब कंपनी के जो इंटरनल कंस्ट्रेंट्स हैं वो उसके कल्चर की वजह से आते हैं, और जो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट से आते हैं। द इंटरनल कंस्ट्रेंट्स आर नोन एज कॉर्पोरेट कल्चर। इंटरनल कंस्ट्रेंट्स को भीतरी रुकावट, इंटरनल कंस्ट्रेंट भीतरी रुकावट, इन्हें આપણે કહેવાય corporate culture, and જે external constraints છે એને આપણે કહીએ social culture। Next point is it is neither omnipotent, that is all powerful, nor symbolic, that is helpless। इसमें इस कैरेक्टर जो
एक अच्छा कल्चर है ना, उसमें ना ही सबके सब पावरफुल होते हैं, सब अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम सब बेबस भी नहीं होते, सब लाचार भी नहीं होते, ઠીક છે। એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશન કલ્ચરનો અર્થ એ છે કે ભાઈ એક સારો કલ્ચર બેસિકલી એ છે કે જ્યાં લોકો પોતપોતાના ઈચ્છાથી કામ નથી કરતું, એમને ગાઈડેડ છે શું કરવાનું છે, એટ ધ સેમ ટાઈમ લોકો શું કહેવાય આપણે હેલ્પલેસ નથી, ઓકે, એ લોકો એવું મજબૂર નથી, ओके। सो इट इज अ रेदर शेयर्ड बिलीफ, ओके। तो उसमें कॉम्बिनेशन है, एक शेयरिंग है बिलीफ्स का। मैनेजर्स डू नॉट एंजॉय ऑल अथॉरिटी, एट द सेम टाइम दे आर नॉट टोटली हेल्पलेस इन डिसाइडिंग एंड टेकिंग डिसीजंस, ओके। तो मैनेजर्स सारी अथॉरिटी को एंजॉय नहीं करता है, पर ऐसा भी नहीं है कि उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so next one, again, the third one is this: organization culture generally has three shades. Okay, it has got three shades: perspective, descriptive, and shared. अब ध्यान रखना यार, वर्ड्स आ रही हैं, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव यानी कि सोच, डिस्क्रिप्टिव यानी कि जो लिखा हुआ है, और शेयर्ड यानी कि जो म्यूचुअली यू कैन से बॉर्न हुआ है, म्यूचुअली जो डेवलप हुआ है। तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल भी दूं तो पर्सपेक्टिव सोच होती है, जैसा कि हमने कहा। डिस्क्रिप्टिव कंपनी के मिशन, गोल्स, अटेनमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, मिशन विजन्स होते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। शेयर्ड जैसे कि मैंने कहा कि पर्टिकुलर रीजन में जो चीज चलती है वो शेयर्ड बिलीफ में आ जाती है। उसके बाद देखो वापस से थ्री है, दैट इट इन्वॉल्व सिस्टम इन्वॉल्विंग थ्री सीक्वेंशियल स्टेजेस। अब वहां पे थ्री शेड्स थे या थ्री सीक्वेंशियल स्टेजेस हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये हम पहले भी देख चुके हैं, किसी भी सिस्टम में तीन स्टेजेस होते हैं: इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स। नेक्स्ट वन इज इट इज डिस्टिंक्ट एंड यूनिक, पहले का, ओके, एंड इज रिफ्लेक्टेड इन मैनेजमेंट फिलोसॉफी, मिशन स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारे मेथड्स हैं जहाँ पे कल्चर रिफ्लेक्ट होता है लिखित में, डिस्क्रिप्टिव में। इट प्रमोट्स डोमिनेंट एंड स्टेबल वैल्यूज विच आर एक्सपेक्टेड टू बी शेयर्ड बाय ऑल। तो बेसिकली जो फिफ्थ पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट का एग्जाम्पल है। डिस्टिंक्ट एंड यूनिक क्योंकि सोच है, सबकी सोच अलग अलग है। डिस्क्रिप्टिव क्योंकि सब चीज मैनेजमेंट ने लिखा हुआ है, फिलोसॉफी, मिशन स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, एवरीथिंग। एंड शेयर्ड जो लास्ट पॉइंट सामने से कहता है, क्योंकि क्यों कल्चर डोमिनेंट है, क्योंकि शेयर्ड है, सब मानते हैं, ठीक है, और इसलिए स्टेबल भी है। इट डिसाइड्स द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग ऑन इट्स इम्पैक्ट ऑन द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स एंड इट्स विजिबिलिटी टू इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड करता है, ઓકે। ઓર્ગેનાઇઝેશન કલ્ચરથી કોઈ પણ કંપનીના એના સ્ટ્રેન્થ, એના વીકનેસ આપણે ઓળખીએ, એન્ડ એના જે ઇમ્પેક્ટ છે, કલ્ચરનો જે ઇમ્પેક્ટ છે, એ ત્યાંના મેમ્બર્સના વ્યવહારમાં પણ ખબર પડે છે। જો કોઈ સારા કલ્ચરના, સારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કામ કરશે તો એ માણસનું પ્રોડક્ટિવિટી સારી હશે, સોચ સારી હશે, ઓકે। અને એ વસ્તુ અંદર જે એમ્પ્લોયર્સ છે, જે કંપનીમાં લોકો છે, એને તો દેખાય જ છે, એઝ વેલ એઝ જે બહારના લોકોથી આપણે ઇન્ટરેક્ટ કરીએ ને, કંપનીના બહારના, એને પણ એ વસ્તુનો ખ્યાલ આવે છે। The organization culture is, again there are three terms: created, maintained and transformed by the people, the organizational leaders as well as organizational followers for the employees. એટલે પહેલું તો ઓર્ગેનાઇઝેશન કલ્ચર જે છે એને ક્રિએટ, બનાવવાનું, એને મેન્ટેન કરવાનું, અને એનો ટાઈમ ટુ ટાઈમ થોડુંક વેરિએશન લાવવાનું, એ બધું એ ત્યાંના લોકોનું જ છે। કાંઈ કંપનીના લીડર્સ હોય, ઓર્ગેનાઇઝેશનલ લીડર્સ હોય, કે એના ફોલોવર્સ કે એમ્પ્લોઈઝ હોય, ઓકે। Question is what are the various factors affecting organizational culture? Okay, किस किस फैक्टर से अफेक्ट होता है। फर्स्ट वन इज सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि जैसा कि हमने कहा लोग ही बना रहे हैं, तो किस तरह के लोग हैं वही सबसे पहला इफेक्ट करेगा। दूसरा, एटीट्यूड ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट कैसे लोगों के साथ व्यवहार करता है। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन का सोशलाइजेशन, इसमें सीएसआर एक्टिविटीज मतलब कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटीज भी आ जाएंगी, इसमें कंपनी के बेटरमेंट पॉलिसीज भी आ जाएंगे, बेनिफिशियल पॉलिसीज भी आ जाएंगी। फिर अधेरेंस टू इंपॉर्टेंट वैल्यूज, ओके, एथिक्स को कितना मानती है कंपनी एंड ऑल। फिफ्थ पॉइंट इज जस्टिफाइड परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड अप्रोप्रिएट रिवार्ड सिस्टम, ओके। मतलब कि एक कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अच्छा है तो वो अपने एम्प्लॉयज को अच्छा रिवॉर्ड सिस्टम देगी, उनका परफॉर्मेंस अच्छे से इवेल्युएट करेगी। ऐसा नहीं कि तूने अच्छा काम नहीं किया, तूने नहीं, तूने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि तू
किसी बायसनेस पे ये डिसीजंस नहीं होते हैं अच्छे कल्चर में। एंड लास्ट वन इज रिकॉग्निशन एंड प्रमोशंस। अगर अच्छी कंपनी का कल्चर है तो वो अपने सारे एम्प्लॉयज को, जो भी अच्छा काम करे उनको रिकॉग्निशन देगी, जिसको जहाँ प्रमोशन मिलना चाहिए वहाँ प्रमोशन मिलेगा। આઈ હોપ બધાને અહીંયા સુધી આ બધી વસ્તુઓ ખ્યાલ આવી ગઈ છે. કોઈને કોઈ પણ ડાઉટ હોય, you can write it in the comment box. Okay, so let us move on. आगे चलते हैं. Okay, next topic है हमारा मोरल का मतलब है सीख. पहले छोटे बच्चों को हम कहानी सुनाते थे ना, मोरल ऑफ द स्टोरी इज. आज एक कहानी थी, आपने શું सीख्યું? ओके, क्या सीखा आज की कहानी से, वो मोरल. अब मोरल का मैनेजमेंट में क्या डेफिनेशन है कि मोरल मीन्स द कॉर्डियल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज टू वर्क इन अ यूनिट. मोरल का मतलब है कि एम्प्लॉयज, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनके बीच में एक सद्भावना है. ठीक है, और वो उस सद्भावना से अपना काम कर रहे हैं. मोरल इज द ड्राइविंग फोर्स विच कीप्स द ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन. अब अच्छा मोरल का मतलब है मानस का, इंसान का मानसिकता जो है, इंसान की जो सोच वो बहुत अच्छी है. ओके, उसे अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिव है. अगर वो पॉजिटिव है तो अपने काम को ज्यादा ध्यान दे पाएगा, ज्यादा एफिशिएंटली पूरा कर पाएगा, और उसे करने की इच्छा भी अच्छी होगी. जैसे कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ, चलो बहुत थियरी होगी, प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ. अगर मुझे मेरी कंपनी में जाना पसंद है, क्यों पसंद है? क्योंकि भाई मुझे काम अच्छा मिलता है, मुझे मेरे काम के सामने पैसे अच्छे दे रहे हैं, वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटीज अच्छी हैं, वहाँ के कल्चर्स मेरे कल्चर से मैच करते हैं, सेम त्योहार मनाते हैं. ठीक है, तो ऐसी जगह पे काम करने जाने का मजा आएगा. अब जाके अच्छा काम करोगे. पर अगर मैं आपको एक ऐसी कंपनी में डाल दूं जहाँ भाई सैलरी का ठिकाना नहीं है, ओके, बस कभी आई तो आई, नहीं आई तो आपको अपने पैसों से जाना पड़ रहा है, ओके, काम दिन रात लेते हैं, कोई, आप एक ही पोजीशन पे एक ही काम सालों से कर रहे हो, आपको कुछ अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो आपको वहाँ काम करने का इच्छा नहीं, फिर होता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है काम करो या ना करो. अगर वो वाली एटीट्यूड आ रही है, यानी कि आपका मोरल कम है, डाउन है. लेकिन अगर ऐसा आ रहा है कि नहीं नहीं, आज जाके वो फटाफट मैं काम फिनिश कर देती हूँ, या निकलने से पहले ऐसा फीलिंग है नहीं नहीं आज तो ये काम खत्म करके ही जाना है, अरे इसमें तो अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लगता है ये यहाँ कंपनी में, मुझे दूसरी कंपनी में नहीं जाना है, क्योंकि ये कंपनी मेरी सारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, यानी आपका मोरल हाई है. सवाल देख लेते हैं. पहला है प्रॉपर सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज. सही आदमी को सही जगह लगाने से उस इंसान का मोरल बना रहेगा. अब मैं केमिकल इंजीनियरिंग हूँ और मुझे इलेक्ट्रिकल में वायरिंग सेट करने भेज दिया गया है, क्या करूंगी मैं? ठीक है. इनफैक्ट कई बार ये भी होता है कि पोजिशनल डिफेक्ट भी आ जाता है. कि लेट मी टेल यू वन एग्जांपल, कि अगर मान लो मैं एक फैकल्टी हूँ, एक टीचर हूँ, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और मुझसे कहा जाए कि जाके ना आप बैंक में जाके ना वो पे स्लिप पे थप्पे लगाओ, बराबर है ना, स्टैंप लगाओ, आई विल बी, आई वोंट लाइक डूइंग दैट. ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, सुटेबल ट्रेनिंग. डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने एक पर्टिकुलर बंदे को एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए उसके स्किल सेट्स को देख के लिया है, लेकिन तो भी आपको अपनी कंपनी में उस स्किल सेट्स को कैसे लगाने हैं उसके लिए एक ट्रेनिंग देनी पड़ती है. इसलिए आप लोग कभी कॉलेज में होंगे शायद, आप यहाँ से जब भी कंपनी में जाओगे तो सबसे पहले आपका इंडक्शन होता है, ओरिएंटेशन या ट्रेनिंग, इस तरह के टर्म्स यूज करते हैं कि पहले आपको बताया जाएगा आपको करना क्या है. अप्रोप्रिएट जॉब एलोकेशन विच रिजल्ट्स इन जॉब सेटिस्फेक्शन. ठीक है, जैसा कि मैंने आगे भी कहा कि सही जगह पे सही नौकरी मिलनी, सही काम मिलना जरूरी है. कंड्यूसिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अगर मेरे कल्चर से मिलता है तो मैं तुरंत अडेप्ट कर लूंगी. अब लेकिन होता ये है कि मैं बंगाल से हूँ. ठीक है, भाई बंगाल में तो मुझे खाने में लंच में राइस और मच्छी पसंद है, और मैं यहाँ गुजरात में हूँ जहाँ फिश कोई नहीं, शायद हार्डली कोई खाता है, तो मुझे मजा नहीं आएगा, है ना, मैं उस कल्चर को इतना अडॉप्ट नहीं कर पाऊंगी. या फिर मैं एक जैन हूँ, लेट अस से मैं एक जैन हूँ, ठीक है, और मैं चली जाती हूँ वेस्ट वेस्ट बंगाल में, वहां तो खाने में फिश ही मिल रहा है, और मैं तो फिश नहीं खा सकती, तो ऑब्वियसली मैं उस कल्चर से नहीं हूँ. नहीं फावतू एक वो एक આપણે મનમાં એક વિચાર આવે ને, અહીંયા મને નહીં ફાવતું. that is what is organization culture conduciveness is, કે જ્યારે તમને ફાવે ને કે નહીં નહીં અહીંયા તો બધું સેટ છે, that is a conducive. पर नहीं फावे, that is non conducive. देन गुड लीडरशिप. आपका लीडर, आपका बॉस कौन है, अच्छा है तो अच्छा एनवायरमेंट. કોર્ડિયલ એટીટ્યુડ ઓફ મેનેજમેન્ટ ટુવર્ડ્સ એમ્પ્લોયઝ. અગેન એ જ વસ્તુ આવી, ત્યાંનું મેનેજમેન્ટ સારું છે, ત્યાંનું મેનેજમેન્ટ ખરાબ છે.
પાર્ટિસિપેશન ઓફ એમ્પ્લોઈઝ ઇન મેનેજમેન્ટ. હવે એમ્પ્લોઈઝ કઈ રીતે પોતાને મેનેજમેન્ટમાં ઇન્વોલ્વ કરે છે. ओके, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. टॉप मैनेजमेंट पॉलिसीज सच एज रिवार्ड बोनस, वो हम आगे देख चुके हैं. देन रिकॉग्निशन ऑफ इनोवेटिव एंड क्रिएटिव स्किल्स, अगेन सेम थिंग. देन इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, चलो आपका कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी कंपनी एक ऐसी जगह पे जहाँ बाहर हमेशा टेंशन बना रहता है, ओके, तो मजा नहीं आएगा, राइट. लेकिन अगर आपका कंपनी का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं तो यू विल लाइक डूइंग वर्क. देन पर्सनल फैक्टर्स, फिर आप कहाँ से आ रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट रखता है. अब नेक्स्ट टर्म है जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रोडक्टिविटी. तो प्रोडक्टिविटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट ऑफ एनी बिजनेस और फाइनेंशियल एक्टिविटी टू इनपुट यूज्ड. ओके, सीधी सीधी बात हमें आउटपुट बाय इनपुट याद रह जाएगा. प्रोडक्टिविटी इज आउटपुट बाय इनपुट. अब आगे का स्लाइड जो है वो मैं यही क्लियर दिखा देना चाहती हूँ, आगे का इतना जरूरत नहीं. अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि भाई किस तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, वो हम यहीं से पता लगा लेंगे. अगर 3 तरीके हैं. सबसे पहला, अगर मैं इनपुट फिक्स कर देती हूँ और आउटपुट बढ़ाऊंगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा. समझे कि नहीं? ठीक है, अगर मैं आउटपुट बढ़ाती हूँ, आउटपुट अगर बढ़ाया तो मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा. बराबर है ना, राइट. नेक्स्ट, अगर मैं आउटपुट फिक्स रखती हूँ, आउटपुट में चेंज नहीं करती हूँ, लेकिन मैं मेरा इनपुट अगर घटा देती हूँ, आउटपुट उतना ही रखती हूँ लेकिन किसी तरह से मैं इनपुट घटा देती हूँ, तो भी मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, राइट. एंड तीसरा एक और केस होता है. तीसरा केस क्या होगा, कोई बता सकता है? सी, तीसरा केस ये होगा कि मैं थोड़ा सा इनपुट बढ़ाती हूँ लेकिन बहुत सारा आउटपुट बढ़ाती हूँ, तो भी मेरा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा. पे लिखिए કે પેલી વસ્તુ છે કે ઇનપુટને કોન્સ્ટન્ટ રાખીએ અને આઉટપુટને વધારીએ તો પણ પ્રોડક્ટિવિટી વધશે. આપણે આઉટપુટને કોન્સ્ટન્ટ રાખીએ અને ઇનપુટને ડિક્રીઝ કરીએ, ઇન્ક્રીઝ નહીં કરીએ, ડિક્રીઝ કરીએ તો પણ પ્રોડક્ટિવિટી વધશે. એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ કે નાનકડું માર્જિનલ ઇન્ક્રીઝ રાખીએ ઇનપુટમાં પણ મોટું ઇન્ક્રીઝ મળે આઉટપુટમાં તો પણ પ્રોડક્ટિવિટી વધશે. હવે આ પ્રોડક્ટિવિટી વચમાં કેમ આવ્યું? તો આપણે રિલેશનશિપ જોઈએ છે. એલ્ટન માયોઝ રિલેશનશિપ એને કહેવાય, જે મોરલ અને પ્રોડક્ટિવિટી પર છે. એમાં 3 ગ્રાફ છે. તો જે ઉપરનો ગ્રાફ છે ને એ શું કે છે કે મોરલ ઓછું છે તે છતાંય હાઈ પ્રોડક્ટિવિટી હોય તો બહુ જ સારામાં સારું. બરાબર, પણ આવું હોતું નથી. બીજું, મોરલ અને પ્રોડક્ટિવિટી યુનિફોર્મ છે, મોરલ જેટલું જેટલું વધશે પ્રોડક્ટિવિટી એટલું વધશે, ટોટલી પોસિબલ. એન્ડ ત્રીજું ઇઝ લાઈક હાઈ મોરલ છે પણ પ્રોડક્ટિવિટી લો છે તો નહીં ચાલે. ઓકે, સો આપણે બેસિકલી ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ ના વચમાં ક્યાંક હોવું જોઈએ કે મોરાલ પણ હાઈ હોવું જોઈએ બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ પ્રોડક્ટિવિટી પણ વધતી જવી જોઈએ. ओके, इम्पैक्ट ऑफ हाई एंड लो मोरल, क्योंकि ये अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है. तो पहला पैरामीटर है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. तो हाई मोरल जिस ऑर्गेनाइजेशन का है लोगों का, वहां का ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा? कंसंट्रेटेड एंड कोऑपरेटिव एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. अगर सबका मोरल हाई है तो सब अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने पे अपना पूरा ध्यान फोकस डाल देंगे, एफर्ट डाल देंगे. लेकिन अगर मोरल कम है तो ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. बराबर. नेक्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी. ऑब्वियसली हाई मोरल हाई प्रोडक्टिविटी, लो मोरल लो प्रोडक्टिविटी. क्वालिटी हाई हाई, लो लो. यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये उल्टा हो जाएगा. यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होता है हाई मोरल में, खर्चा कम लगता है, जबकि लो मोरल होता है तो खर्चा ज्यादा लगता है. डिसिप्लिन हाई मोरल में ज्यादा रहता है, लो मोरल में कम रहता है. अब इसके बाद से सब रिवर्स में चला जाएगा. नीड ऑफ कंट्रोल, एब्सेंटिज्म, लेबर टर्न डाउन, ग्रीवांसेस, ये सारे हाई मोरल ऑर्गेनाइजेशन में कम होते हैं, जबकि लो मोरल ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा दिखते हैं. एंड लेबर रिटेंशन रिलेशंस, तो हाई मोरल होगा तो स्मूथ एंड कॉर्डियल, लेकिन अगर लो मोरल होगा तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, स्ट्राइक होगा, धरना होगा, वगैरह वगैरह. इससे आता है एक और टर्म जॉब.
तो ईए लॉक ने क्या कहा है कि जॉब सेटिस्फेक्शन इज डिफाइंड एज प्लेजेंट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय टुवर्ड्स हिज वर्क एंड वर्क एक्सपीरियंस। मतलब कि जॉब सेटिस्फेक्शन कब आता है कि जब इंसान को अपने काम के प्रति एक पॉजिटिव फीलिंग आए, उसे खुशी हो, ओके, उसे काम करने की इच्छा हो, अपने जॉब से सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो, वो जॉब सेटिस्फेक्शन है सीधी सीधी। जॉब सेटिस्फेक्शन की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय टुवर्ड्स जॉब, ओके, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। दूसरा, बेटर रिजल्ट्स दे रहा है एम्प्लॉय। तीसरा, मोरल बढ़ रहा है। देखो अब यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन और मोरल का कनेक्टिविटी भी है कि मोरल हाई है। एंड चौथा, एम्प्लॉय का कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल बढ़ता है अगर एम्प्लॉय जो है उसमें अच्छे मोरल का है, उस जॉब से सेटिस्फाइड है, उसका कल्चर अच्छा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब सेटिस्फेक्शन तो बहुत सारे, बट कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ वर्क, किस तरह का काम करवा रहे हैं। दूसरा, रिनोमरेशन किस तरह का देते हैं। तीसरा, प्रमोशन की पॉलिसीज क्या क्या है। चौथा, वर्किंग कंडीशन कैसा है। पांचवा, ग्रुप कैसा है। और छठा, सुपरविजन। इन सभी पर फैक्टर्स पे ही जॉब सेटिस्फेक्शन डिपेंड करता है। तो टुडे वी विल एंड ओवर हियर। आई होप, thank you everyone. Have a very good day. And if you have any doubts, please do mention in comment. And to all the students uh, who are taking this lecture since the beginning, we have completed here our second chapter also as per the GTU syllabus. Next, we will be starting with the fourth chapter first of all, and then we will move on to the next chapters. Okay, so thank you so much once again.